Hello everybody, welcome to my channel. And first of all I would like to say thanks, many thanks for watching my first and for liking my first video, and show gratitude for visiting my channel. First of all I would like to tell last story, then after I will start second one story. And this story is a must, amazing. You will definitely, after watching, you must feel improvement something. And first of all I recall last story. United we stand and divided we fall. A lion lived in a forest. One day he saw three healthy and beautiful horses. He heard their talking. They were all happy. The lion wanted to eat one of the healthy horses, but he knew that he couldn't fight with all the three horses at a time. The lion planned to create a rift among the horses. One day, the horses were grazing all together. The lion hid himself behind the bush, and a horse was little away from the other two horses. The lion whispered, "Hello friend, how are you? Do you know your friends are grazing much greener grass, whereas you are left with dried. They all are selfish. They are selfish." The lion went away, and the result was that this horse became hostile to the other two horses. Next day, the lion again went to the other horse and said the same thing, and the other horse was also lost his faith in his friends, and the lion and in the same manner the lion made all the three fall out one another. Within a few days the horses were grazing separately, and one day a lion killed one horse, and the other two horses remained unconcerned. The horse was killed, and lion enjoyed horse flesh. Another few days, the lion again attacked to the other horse, and second horse did not come to his help his friends, and in the same this thing happened to the third one, and all the horses were killed easily just because of lion's cunningness. That's all. And ठीक है, let's begin new story. First of all, I am going to read paragraph after about that. A boy. Story title. Story 2. Realize what God has given to you. Realize what God has given to you. हम क्या दिए सबको. A boy named Nandu lived in a city. He was a beggar. He used to beg at the crossroads and red lights. Sometimes after begging for the whole day, he would get money enough to buy meal for himself, and sometimes he would get so little that he would go without meals. एक नंदू नाम का सिटी में, और वो भिखारी था. वो भीख मांगता था. समटाइम्स वो उसको थोड़े मनी मिलते थे, उससे वो अपना कुछ खा लेता था, और समटाइम्स कभी कभार उसको बहुत कम ही पैसे मिलते थे, जिसके बगैर उसको बगैर खाने के भी रहने पड़ते थे. सिंस हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो बेगर, क्योंकि उसके माता पिता भी बेगर थे. सिंस हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो बेगर्स, नंदू नेवर थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट बेगिंग. ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न अ बेगर एंड कुड डू नथिंग एक्सेप्ट बेगिंग. क्योंकि उसके माता पिता भी भिखारी थे, और नंदू ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं उसके अलावा कि बेगिंग के अलावा, बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न, वो एक भिखारी की तरह पैदा हुआ और वो कुछ नहीं कर सकता भीख मांगने के अलावा. उसको ये विचार था उसका. देयरफॉर ही वुड बेग फॉर द होल डे एंड गो टू नियर बाय मार्केट इन द इवनिंग टू बाय समथिंग टू ईट. बट वन डे ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, नीदर फूड नॉर मनी. इसलिए वो पूरा दिन भीख मांगता था, और शाम के टाइम मार्केट में जाके कुछ खाने की चीज़ें ले लिया करता था. और एक दिन उसको ना ही पैसे मिले, ना ही कुछ खाने को मिला. He felt
so dejected that he began cursing God. He thought God was very partial in his behavior. He gives everything to the rich and keeps poor people begging before them. Just when Nandu was cursing God, a rich gentleman happened to pass by. वो नंदू था बहुत निराश हो गया दैट ही डू नॉट गेट एनीथिंग, नोर फूड और नोर मनी। ना ही उसे उस दिन पैसे मिले और ना ही खाने का कोई सामान मिला। तो कि वह गॉड को कर्ज करने लगा, गॉड को कोसने लगा कि ही थॉट गॉड वॉज वेरी पार्शियल। आंशिक रूप से उसके बिहेवियर है, वो सब चीज़ जो है अमीर लोग को दे देता है और अमीर लोग के सामने हम जैसे गरीबों को भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। जस्ट व्हेन नंदू वॉज कर्सिंग गॉड, उसी दौरान जब वो पूछ रहा था तो एक रिच जेंटलमैन हैपन उधर से गुजरा और कहा, ही सेड, यंग बॉय व्हाई आर यू कर्सिंग गॉड? क्यों तुम भगवान को कोस रहे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नंदू सेड, सर आई एम अ बेगर, आई बैग फॉर द होल डे एंड मैनेज माई मील्स विथ वट एवर आई गेट, बट टू डे आई डिडंट गेट अ सिंगल पैसा, आई एम लिटरली स्टार्विंग। नंदू ने कहा, सर आई एम अ बेगर, मैं भिखारू हूँ, मैं पूरा दिन भीख मांग के अपने खाने को मैनेज करता हूँ और जो भी मुझे प्राप्त होता है, बट टू डे आई डिडंट गेट अ सिंगल पैसा, बट आई एम सचमुच आई एम टूडे, अभी मैं भूखा हूँ। द जेंटलमैन सेड, इफ़ यू आर हंग्री आई विल गिव यू फूड बट डोंट कर्स गॉड, ही इज़ काइंड टू एवरीवन। अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, बट गॉड को कुछ मत कहो, वो बहुत दयालु है, सबके लिए ही दयालु है वो। द जेंटलमैन टुक हिम टू होम एंड gave him food and then said, Nandu, can you give me one of your legs and I will give you 500 rupees for it. जेंटलमैन नंदू को अपने घर ले गया और उसे कुछ खाना दिया एंड उसके बाद उसने कहा, नंदू कैन यू, तुम मुझे अपनी एक टांग दे सकते हो? आई विल गिव यू 5,000 रुपये, इसके लिए मैं दूंगा। नंदू सेड, नो नॉट एट ऑल, हाउ इज इट पॉसिबल, आई कांट गिव माई लेग्स। द जेंटलमैन सेड अगेन, सेड, अनलेस यू वांट टू गिव लेग then you can give me one of your eyes, I will give you a bag full of gold, a bag full of gold, then you will be rich enough to enjoy your life. नंदू ने जैसे ही सुना कि मैं आँख लेग मांगा, टांग मांगा, तो नंदू ने कहा, नो नेट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं नहीं दे सकता मैं अपनी टांग नहीं दे सकता। जेंटलमैन ने अगेन कहा, अनलेस, अगर तुम टांग नहीं देना चाहते तो मत दो, बट कैन यू अपनी ये 2 आँख में से एक आँख दे सकते हो मुझे? मैं इसके लिए इसके बदले में मैं तुम्हें एक बैग भर के सोना दूंगा एंड यू विल बी इनफ, यू विल बी रिच, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, काफ़ी अमीर हो जाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। नंदू एंग्रीली, गुस्से में कहा, हाउ शैल आई एंजॉय विद वन आई, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ एक आँख से? आई विल बी हैंडीकेप्ड, आई विल बी हैंडीकेप पार्शली, आई विल बी पार्शली, मैं आंशिक रूप से विकलांग हो जाऊँगा। द जेंटलमैन सेड, देन वाई डू यू ब्लेम गॉड फॉर नॉट हैविंग गिवन एनीथिंग टू यू, तुम फिर काहे को गॉड को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिया। हे नंदू, यू हैव एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन, इजंट इट अ शेम, ये नंदू इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सभी चीज़ है, इजंट इट अ शेम, क्या ये शर्म की बात नहीं है? दैट यू डू नॉट इवन नो हाउ मच गॉड हैज़ गिवन टू यू, ये बहुत शर्म की बात है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गॉड ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। यंग बॉय, डोंट ब्लेम गॉड फॉर योर फेलियर, मेक यूज ऑफ वट यू हैव बीन गिवन बाय गॉड, अपने फेलियर के लिए गॉड को ब्लेम, दोष मत लगाओ और यूज़ करो जो भी तुम्हें गॉड के द्वारा मिला है। एंड यू मस्ट बी गेट नेम एंड फेम, डेफिनेटली वन डे यू मस्ट बी गेट नेम एंड फेम। स्टार्ट करें। द जेंटलमैन वेंट अवे लिविंग हिम, नंदू पॉन्डरिंग अपॉन हिज वर्ड्स, ही टुक अ वो मीन्स होता है शपथ लेना, शपथ या प्रतिज्ञा मीन्स इसका 2 मतलब होता है, व्रत और प्रतिज्ञा मीन्स जो चीज़, मैंने भी एक प्रतिज्ञा ली है, आई ऑल्सो टुक अ दैट
if anybody can visit my channel or not, I will keep continue this video of series definitely. और प्रतिज्ञा मीन्स उसी पल कोई भी काम छोड़ देना, कहा और छोड़ दिया। ही टुका वो टू स्टॉप बेगिंग, उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं ये भीख मांगना छोड़कर डू सम वर्क विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ हार्ड एंड सिंसियर लेबर। नंदू बिकेम अ रिच मैन। कुछ ही सालों में उसने बहुत सिंसियर और हार्ड वर्क की बदौलत वो अमीर बन गया। दिस इज द एंड स्टोरी, दैट्स ऑल। इसका मैं आई विल मेक यू रिवाइज नेक्स्ट वन। इस वीडियो को, इस स्टोरी को मैं अगले वीडियो में रिवाइज करवा दूँगा। दैट्स ऑल।